धर्म चुलामन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपहारं। वाहिगुरु जी राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरता जात अब बेकार। राजे इंद्र समसुर गृह आसन, बिन हर भगत कहो के लिखे। दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरता जात अब बेकार। राजेंद्र समसर गृह आसन, बिन हर भगत कहो के लेखा। नाम विचारियो राजा राम को रथ, ये रथ अनरथ भीतर जाए। राव ज्ञान अजान है हम बाबर, सोचे असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नहीं। कहियत आन अचरियत अनकछ, समझ ना पड़े अपुर माया। रविदास उदास उदास मत, पर हर को करो जी दया। कहियत आन अचरियत अनकछ, समझ ना पड़े अपुर माया। कहे रविदास उदास उदास मत, हर हर को करो जी दया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाहं जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगधा जन्म भया। प्राणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। प्राणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। शब्दावतार बाणी दे बोहत, जुगोह जुग अटल,
परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छत्र तख्त के मालिक, धन धन ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਨਮ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਵੇਖ, ਸੱਸਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸੱਸਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਉਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਦੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਿਬੇਕੇ। ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ, ਦੁਰਲਭ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੀਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਜਨਮ ਐਸਾ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਖਰੀਦਣ ਤੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਿਬੇਕੈ। ਬਿਰਥਾ, ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
पर जिन्हां कोल विवेक नहीं है वो नाशवंत नाल केवल नाशवंत पदार्थ खरीद रहे ने, इकट्ठे कर रहे ने। संसार दे च सब कोई नाशवंत है। तुसी देखो, कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसन हार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ पहनन हार, कूड़ काया, कि काया तक भी कूड़ है भलिया। किथे तू एक महल माड़ी बनाई, 1 एकड़ का मकान 2 एकड़ जगह दे विच 25 एकड़ दे च 50 एकड़ दे च बना लवें, 500 एकड़ जमीन घेर लवें महल बनाउण लई, धोखे नाल बहुत कुछ तू इकट्ठा कर लवें, पर है तां सब कुछ नाशवंत। कितना चंगा हुंदा तेरा दुनियावी मकान, बेशक छोटा हुंदा, दुनियावी महल बेशक घट सजिया ते सवरिया हुंदा, पर तू उस महल नूं संवार लैंदा जिथे जाना है। महल का अर्थ हजूरी भी हुंदा है। जो घर छड्ड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। सतगुरु जी ने शब्द वरत्या अविवेक, विवेक, विवेक बुद्ध गुरु तो प्राप्त हुंदी है। दुनियावी बुद्ध तो सारियां कोल है, पर विवेक बुद्ध गुरु तो प्राप्त हुंदी है। याद रखियो, जद तक गुरु के सिख दे अंदर या किसी मनुख दे अंदर शब्द केवल सिख नूं चानना नहीं दिंदा। शब्द तो कोई भी, एक गल होर समझ लेना, शब्द का अर्थ है नाद, ब्रह्मनाद, गुरनाद ते नाद। इस शब्दां नूं जे सूची च रखीए ना, ते याद रखियो ब्रह्म शब्द, गुर शब्द, शब्द ते अपशब्द, उस सच्ची दरगाह तो जो शब्द आया है, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच वखाना। वो ब्रह्म शब्द सी, वो परमात्मा वाहिगुरु आप बोलिया। गुर शब्द, वो शब्द आया गुरु कोल, गुरु ने वो शब्द समझिया ते सानू समझाया। ते जिसने उस शब्द नू अपने जीवन दे विच ढाल लिया, भाव की कमा लिया, ओदे बोलां उत्ते भी सच वस गया। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखा एकस बिन कोय, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सच बोलिया उन्होंने, सच सुनिया, सच समझिया, सच कमाया ते सच बोलिया। पर आम तौर ते असी ब्रह्म शब्द नूं समझना की सी, गुर शब्द नूं समझना की सी, असी तां शब्द भी नहीं समझ सके ते तां ही अपशब्द बोलन लग गए। ज्यादातर तुसी लगभग 99% लोगों नूं तुसी वेख लो, ज्यादातर अपशब्द बोलते ने। कोई विरला ही हुंदा है जो शब्दां नूं संभाल के बोलदा है। सियाणे कहंदे ने पहला तोलो फिर बोलो। ते जीवन दे च जे बोल मिठे नहीं होए ते याद रखियो नानक फिक्का बोलियां तन मन फिक्का होए। मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों समल थकी वो कदे ना बोले कौड़ा। कौड़ा बोलना जाना है पूरन भगवान है, औगण को ना चितारे। वो तां फिर सानू वाजा मारदा रहिंदा है, वाजा मार मार के समझाउंदा है। कदी तुसी विचार करन बैठो ना ते गुरु दरबार दा हर एक गुर शब्द कुछ सिखा जाता है। अज बड़ी दौड़ लगी हुई है भी हुक्मनामा दरबार साहब दा, हुक्मनामा बंगला साहब दा, हुक्मनामा सीसगंज साहब दा, हुक्मनामा किसी सिंह सभा दा, हुक्मनामा नानकसर दा,
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਈਦਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਪੜ ਲਿਆ। ਭਲਿਓ ਪੜ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹਾਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਇਹ ਹਾਕ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਹਾਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਕਰੁਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ, ਮੰਮੇ ਤੋਂ ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਕਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਲੁਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਿਬਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਭਲਿਆ ਜੋ ਆਪ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਐਸੋ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਜਾਸ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਜ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੁਝ ਮਿਥਿਹਾਸ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਰਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਰਾਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
बीत जाती है पर बदलती नहीं है। जीवन लम्मा करन दे कई साधन हो गए। मैं समझदा अजोके समय विच जितना जीवन शायद नेता लोगों का लम्मा हो जाए उतना आम मनुख का ना हो, क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल साधन फ्री दे विच सब कुछ मिल जाना, हर 6 महीने 3 महीने तो बाद सारे टेस्ट हो जाने। पर जीवन लम्मा करन दी दौड़ है, जीवन सफल करन दी दौड़ ते नहीं। पर जीवन लम्मा करने लई बंदा दुनिया का मोहताज है, डॉक्टरों का मोहताज है, पर जीवन सफल करने लई किसी का मोहताज नहीं भलिया। एक गरीब झुग्गी च रहन वाला बंदा भी जीवन सफल कर सकता जे गुरु की हजूरी आ जाए। गुरु वर्गी वडियाई कित्थे मिलती है? याद रखियो, दुनियावी बंदे किते भी चले जान, हो सकता है उथे शर्मिंदा होना पवे, मंगता बनना पवे, किसी सके रिश्तेदार कोल चले जाओ, उथे भी हो सकता है कि शर्मिंदा होना पवे या उसका मोहताज होना पवे। गुरु दरबार च कौन किसका मोहताज है? मैनू सच्ची घटना एक याद आ गई कि गुरु का सिख आके बैठा दास कोल, आउंदे ने लोग एज ए हैडगन थी, इत्थे दा सेवादार होने के नाते जीवन के कई तजुर्बे साझे कर जाते हैं। पर जीवन की कुछ घटनावां सानू सिखा बहुत कुछ जांदियां ने। दास ने भी उस दिन कुछ सीखिया। उन्हें अखां च अथरू लैके एक गल कही, कहंदे ज्ञानी जी मैं दिल्ली का ही रहन वाला, ते पुरानी गल है, छोटा सी ते चला गया अपने मामा मामी दे घर, नानका परिवार। अज सोच के गया सी कि मैं ना जावांगा ते रात का खाना उत्थों खा के आवांगा, मामा मामी कोल टिकांगा। पर कहंदे ज्यों गया थोड़ा ही समा बीतिया ते अगलियां ने चाह पिवा के ते कह दिता, बच्चे कद जावेंगा, असी किते होर जाना है। कहंदे एक तोरन का तरीका सी भी जावे। दिल नूं बड़ी चोट पहुंची भी इतनी भावना लैके गया सी, पर एक शाम का लंगर भी नहीं छका सके। मां नाल आके गिला किया, शिकवा किया, पर मां बड़ी समझदार सी। उन्हें एक गल कह दी, मेरे पुत्र जे तू मेरे भरा बारे या परिवार बारे कुछ कहेगा मैनू दुख पहुंचेगा। तू दुनियावी परिवारां नूं छड्ड, तू क्यों नहीं चला जाता गुरु हरकृष्ण साहब सतगुरु जी दे उस पावन स्थान बंगला साहब? तू उत्थे जाके जितना मर्जी बैठिया कर, तू जितना समा बैठा रहेगा तैनू कोई कहने की जरूरत नहीं करेगा भी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हुण तू इत्थों तुर जा। तू गुरु की गोद बैठ के सुनदा रह, ये नाम भोजन खांदा रह। त्रिपत भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया। फिर याद रखी उथे लंगर का भी इंतजाम है। तू दोपहरे छक, रात नूं लंगर छक। दास लगभग 6 साल तो वेख रहा है इतने लोग। ते पहला तो जद तो जीवन बनया आप गुरु दरबारां नूं वेखदे आ रहे हैं। दास जद पिछे विदेश टूर ते गया, संगतां ने गुरु दरबार दी वडियाईयां, कईयां कहंदे ज्ञानी जी इन्ना सुंदर लंगर हाल, गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरु दरबार, ये जो वडियाईयां, ये जो गुरु दरबारां दे कारज ने, ये साडे सुख साधना लई ने। पता क्यों? असी बेफिक्र हो के गुरु की कथा कीर्तन सुन सकीए, सुन के जीवन च कमा सकीए। सानू ये फिक्र ना होवे भी गड्डी किते बाहर खड़ी कर जा आए हैं ते कोई चक के लै जावेगा। नी सुंदर पार्किंग भी होवेगी साडे लई। ये गुरु दरबारां दे कारज हुंदे ने, सोहणे गुरु दरबार बनने। याद रखियो धर्म मंदिरां दी उसारी दा रंग भरिया गुरु रामदास साहब जी ने साडे जीवन विच। उदों भी सुंदर कारज गुरु आप करवाउंदे रहे,
ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਿਆਊ ਬਣਿਆ ਸੋਹਣਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ कि मेरे सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह, जिसका कार्य तिने ही किया, मानस क्या बेचारा राम। ये भी किसे दे उत्ते कृपा होवे, किसे दे सिर उत्ते हथ रख के तू ये काम करवा लवे। नहीं तो याद रखियो, बंदे दी फितरत है कारज करने घट ते बिगाड़ने ज्यादा, क्योंकि मनुख अपना जीवन आप बिगाड़ रहा है। इतना अमोलक जीवन मिले है, तेनू असी बिगाड़ते हैं। पर गुरु तो आवाजा मार के कहता बेफिक्र होके आ, ये सुंदर सरावां तेरे लिए बन गई ने, ये एसी कमरे ये तेरे लिए कारज होए ने सारे। याद रखियो, गुरु दरबारां दी दसवंध दी भेटा, गुरु दरबारां दे विच साडे विचों तां खिमा करना कोई विरला ही होवेगा जो पूरा दसवंध कढ़दा होवे, पर ऐसे ऐसे भी गुरु के सिख बैठे ने जो दसवंध नहीं सोचते, वो कहते सब कुछ ही तेरा है, ते सब कुछ तेरा की जीवन भी अपना ला दिंदे ने। बनाउणा है गुरु दरबारां नूं, केवल गुरु दरबार ही नहीं बनने, गुरु दी बाणी दा प्रचार भी होना है। जिस सिख दे अंदर यह भावना नहीं ना कि गुरु दरबार सोने बनन, गुरु की बाणी दा प्रचार घर घर पहुंचे, गुरु दी गल घर घर पहुंचे, याद रखियो वो इंसानियत विचों रब नूं नहीं वेख रहा, जिहदे अंदर ये गुण नहीं है। गुरु दरबार सोने बनते ने ते गुरु दे सोने उपदेश नूं पहुंचाउण लई बनते ने। असी बेफिक्र होके, तुसी वेखो, आ जाओ गुरु दे दरबार, ये इहो जिहा पिता है कि इत्थों कोई सानू बांह फड़ के कढ नहीं सकदा। कल ही तुसी सुना आयो, कल दी विचार कि रब वाहिगुरु किसी दे बाप दी जायदाद थोड़ा, कहंदे वो तां सारियां दा सांझा। इसे तरह गुरु दरबार भी सारियां दे सांझे ने, ते जे गुरु दरबार सारियां दे सांझे ने ते याद रखियो सांझे तौर ते इन्हां दरबारां दी कामयाबी लई, तरक्की लई, गुरु दी शान लई काम करने चाहिए ने। नगर कीर्तन निकलते ने, जेड़ा नौजवान, जेड़ा बुजुर्ग, जेड़ी माता भैन गुरु दी शान दी परवाह करती है, वो नगर कीर्तना दे च बड़ी निमरता नाल शामिल हुंदे ने। उत्थे जाके अपनी नासमझी दा प्रगटावा नहीं करते, पर वेखण नूं मिल जांदा कई वारी कुछ नौजवान मोटरसाइकिलां लैके या होर तरीके दे कई प्रकार के कुकर्म। नहीं भलियो, असी चंगा उदाहरण पेश करना है, तो यह तां होवेगा ना जे गुरु की सिक्ख्या नूं सुनांगे, समझांगे ते कमावांगे। पर कहंदे जेड़ा मनुख अपना जीवन आप बिगाड़ रहा है, वो गुरु दरबारां दे काम नूं विगाड़न तो भी पिछे नहीं हटदा। वो नगर कीर्तना दे विच भी पता है गुरु ग्रंथ साहब जी की अगवाई है, पर उथे भी कई बारी इहो जिहियां गलतियां करन तो नहीं टलदा। ऐसे नौजवान पिछले कुछ समयां दे विच आए भी, जिन्हां नूं जज ने सजा लाई सी कि जाके गुरुद्वारा बंगला साहब इतने दिन जोड़े झाड़ने ने, भांडे मांजने ने। एक गल होर समझ लेना, शायद जितना डर अदब
देखो भुल तो सारिਆਂ तो हो जाती है, मेरे तो भी हो सकती है, खिमा करना। पर याद रखियो दुनियावी डर जितना आप रखते हैं गुरु का उतना नहीं रखते। किसी जज को जा रहे होइए ना, या किसी अफसर को या किसी आम नेता को पहला टैलीफोन बंद करते हैं साइलेंट, भी उत्थे वज ना पवे। अगले कहणगे किहो जिहा बंदा आ गया। पर गुरु दरबारां च जाण लग्गिआं असीं कदी नहीं सोचते, लिख लिख के भी लाया जाएगा, बोल बोल के भी कहा जाएगा। असल विच गुरु का डर असीं नहीं मनते, लोकां दा डर बहुत मनते हैं। इसे करके याद रखियो दुनियावी डर जितना प्रबल होगा उतना ही दुख ज्यादा आवेगा, दर्द ज्यादा आवेगा। डरिया होया मनुख कदी सच ते नहीं टिक सकता, डरिया होया मनुख जगह जगह समझौते कर लेगा। पर जिसनों गुरु का डर है ਉਹਦੇ जीवन विचों दुख ते दर्द निकल जाते हैं। गुरु का जितना वड्डा डर रखांगे उतने वड्डे दुख दर्द साडे जीवन विचों निकल जाणगे। पर गुरु का डर मुका के दुनियावी डर जितना वड्डा असीं रखांगे, याद रखियो उतना वड्डा ही जीवन दे विच दुख ते दर्द आवेगा। डरिया होया बंदा समझौते कर लैंदा है, डरिया होया बंदा जगह जगह डिग पैंदा है, डरिया होया बंदा जगह जगह अपने आप को वेच दिंदा है। ते अज तां दुनियावी तौर ते वेखण नूं मिलदा है कि दुनियावी तौर ते जितना बंदा वड्डा है उतना ही उहदा डर वड्डा है। यही कारण है तुसीं वड्डे बंदियां नूं वेखदे हो, अगे पिछे 40-40 सिक्योरिटी गार्ड हुंदे ने। अज दे स्टार तुसीं वेख लो, सिख बच्चियां नूं सिखां नूं इतना ककारां नाल प्यार नहीं गुरु दे दिते जितना स्टारां नाल प्यार हुंदा जा रहा है। दुनिया ऐसी हो गई है, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल चाहिए ने, ओहो जिहा ट्रीटमेंट चाहिए है। ते जेड़े शहरां विच ने पिंडां विच ने उन्हां नूं फिर स्टार नजर आउंदे ने, फिल्म स्टार। दौड़ उधर है, विआहां विच वेखण नूं मिलदा है। दास कल पढ़ रहे असीं अखबार विच, कहंदे फिल्म स्टार एक जे कोई आउंदा है ना जिहड़ा नामी स्टार है, ते 1 मिनट का 15 लाख रुपया खर्चा पैंदा है। पर कोई सिख विआह वेले नच्चण लई उन्हां नूं तां बुला लेगा, पर कोई सिख 15 लाख रुपए गुरु की बाणी के प्रचार उत्ते लावे ते लगातार 15 महीने सवेर दी अद्धे घंटे दी विचार जे घर घर पहुंचे ना, याद रखियो जीवन दे च कुछ ना कुछ तब्दीली जरूर आवेगी। ये जो 5.5 साल पहला गुरुद्वारा बंगला साहब तो कथा कीर्तन लाइव टैलीकास्ट जाना आरंभ होया, दास नूं कहण च कोई संकोच नहीं, क्योंकि प्रेरणा मिल रही है। पंजाब दे कितने ही लोग 50-50 की गिनती च 5-5 की गिनती च 10-10 की गिनती च आनंदपुर साहब भी पहुंचे, अमृत छकण ते इत्थे बंगला साहब भी पहुंचे। कई परिवार ये पिछले दिनों च यूपी तो उत्तराखंड तो इत्थे पहुंचे ने अमृत छकण। पर याद रखियो बहुत घट लोग ने जो इस पासे यत्न करते हैं कि असी जी गुरु की बाणी दे प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर कर दईए। बिरथा जात अविवेके, जीवन व्यर्थ जा रहा है। नाशवंत तन नाल जो नाशवंत पदार्थ इकट्ठे कीते वो भी नाशवंत कम्मां दे उत्ते खर्च हुंदे ने। अबनाशी जो कदी नाश नहीं हुंदा ना, उस पासे असी नहीं तुरदे, पर कमा सकते हैं उन्होंने। नाशवंत तन नूं वरत के असी अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, चंगे गुण जीवन च कमा सकते हैं। पर मनुख इस पासे तुरदा नहीं है।
सतगुरु जी कह रहे ने राजे इंद्र समसर ग्रह आसन। अगली पंक्ति, बिन हर भगत कहो किह लेखे। हुण इंद्र देवता होवे ना होवे, किसी ने वेख्या होवे ना वेख्या होवे, पर याद रखियो कथा कहानियां बड़ियां घड़ियां गईयां ने। इंद्र दा आसन इहो जिहा, इंद्र दा महल इहो जिहा, अफसरावां नचदियां ने, बड़ा कुछ हुंदा है। सतगुरु जी कह रहे ने, बाबा रविदास जी कहंदे इंद्र समसर, इंद्र वर्गा, ग्रह आसन, ग्रह घर होवे ओहो जिहा महल होण, ओहो जिहा आसन होवे, पर याद रखियो बिन हर भगत कहो किह लेखे। रब दी भगती तो बिना ये किस काम दे ने। बसंत स्वर्ग लोक है, जितते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण। वसदा होवे कोई स्वर्गां वर्गे महलों दे विच, जित लवे पूरी दुनिया नूं, पर केवल रब विसर गया। ते इउं जानो जिस तरह जंगलों च भटक रहा है बंदा, जानवर तो भी गंदा हो गया है। जानवर तो कई बार इउं हुंदा है, तुसीं जंगल च चले जाओ या जानवर के सिर उत्ते चढ़ जाओ तां जाके वो हमला करता है, पर इत्थे तां ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर घुमदे ने जिन्होंने तुसीं कदी मिले भी ना हो, किसी का कुछ बिगाड़िया भी ना होवे, तां भी इतनी कानूनी हरकतां कर जांदे ने कि किसी का जीवन तबाह करके रख दिंदे ने। तुसीं वेखो ना, यही घटना वो जो बच्ची गुजर गई सिंगापुर जाके, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बचाने के जतन ना किए गए होण, बड़े जतन हुए होने, पर नहीं बच सकी। इस घटना नूं पढ़दियां सुनदियां सच जाणियो कई बारी दास दी अखां चथरू आ गए ते दिल रो पिया। पर एक गल समझ भी आई कि कोई जगा जाता है। याद रखियो गुरुआं ने सरबंस वार के दुनिया नूं जगाया सी, नहीं तो इस संसार की पता नहीं की हालत हो जाती अज। ये वखरी गल है कि उन्हां कुर्बानियां नूं असीं भुल गए हैं। केवल इतना ही तुसीं पढ़ या सुन लो कि उस बच्ची दी आंतां खिंच के कढ़ लईआं ते रूह कंब जाती है। भले वो कुर्बानियां दित्तियां सिखां ने, आरे नाल चीर दिता गया, उबलदे पानी च उबल गए, रूह च वलेट के सड़वा लिया, बंद बंद करके अपने आप नूं कटवा लिया, तां जाके अज गुरुद्वारे ते मंदिर नजर आ रहे ने इस देश दे विच। दास दी निजी विचार है, कहा जा रहा सी कि जी उस बच्ची दी निजता नूं ते परिवार दी भाव की पछाण दा ख्याल रखा जाए, लोग पछाण ना सकन। पर दास दी विचार है पछाण सामने आनी चाहिए है। इहो जी बच्ची जे वो चाहती तो वह भी उन्हां जालमां दे कुकर्म विच शामिल हो सकती सी, समर्पण कर दिंदी ते हो सकता है ना मरदी, पर उन्हें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई ते अपनी कुर्बानी दे दिती। उहदे नाल खड़ा जो उहदा साथी सी उन्हें मुकाबला किया ते घटना दास दी अखां दे सामने आ गई। केवल एक छिन लई कह के अगे निकला शब्द वाल कि 84 दे दंगे या गुजरात दे दंगे, उदों जद बहु बेटियां दी पत इउं लुट्टी गई सी, अत दे जुल्म होए सन, उदों भी जेड़े उन्हां दे साथी या भरा या पति वो भी विचारे इउं ही मजबूर हो गए होणगे, उन्हां उत्ते भी वार होए। पर जे किते दास नूं याद है उदों जब 84 दे दंगे होए 9th क्लास विच पढ़दा सी ते अजोके समय दे नौजवान तां उन्हां नूं पता ही नहीं होवेगा उन्हां घटनावां दा, पर गुजरात दा ते 10 साल पहलां होया। जे सजावां उदों दे दित्तियां जांदियां, फैसले छेती हो जांदे
तो हो सकता इन्हां लोगों की रूह कंब जाती। पर हैरान होया महलों च रहने वाले नहीं, झुग्गी झोपड़ियां च भी कई रहने वाले। बंदा इंसान होने का विखावा करता पर असल च हुंदा हैवान है। कदी कदी सोचदा प्रदर्शन करने वाले लोगों में भी की सारे इंसान ने? वक्ती तौर पर बंदा इंसान बन जाता है तो थोड़ी देर तो बाद हैवान बनदियां देर नहीं लाउंदा। कितना चंगा होवे कि असी प्रेरणा लैके उस बच्ची की कुर्बानी तो ही एक एक अवगुण घटो घट असी अपने विचों कढीए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सरबत सिख पंथ, क्योंकि दास नूं बड़े फोन आए ने, असी सारे उस दुख च शामिल हाँ। पर कितना चंगा होवे कि सारा संसार ही एक दूजे विचों रब नूं वेख सके। तत्बुद्ध की है? विवेकता यही है ना। याद रखियो, गुरु के शब्द तो बिना अंदर विवेक पैदा नहीं हो सकता, ते विवेक तो बिना वैराग आ नहीं सकता, ते जिस दे अंदर वैराग नहीं है उथे भगती भी नहीं हो सकती, विखावे की भगती होगी। ते जिथे भगती नहीं उथे भगवान किथे समझ आवेगा। विवेक तो जो वैराग पैदा होता है, अज भी वैराग जो वेखण नूं मिल रहा है, विवेक घट है। जे विवेक शामिल हो जाए ना तो याद रखियो, हर एक मनुख जो दूजे नूं जगाउण दे यतन कर रहा, आप नहीं जाग रहा, सारी जाग जान। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई। ते मन जे जाग जावे ते याद रखियो, सिख विचों भी रब नजर आवेगा, हिंदू विचों भी रब नजर आवेगा, मुसलमान विचों भी रब नजर आवेगा, जानी बोधी ईसाई सारियां दे विचों रब नजर आवेगा। फिर मनुखता इंसानियत जाग पवेगी। फिर मनुख जे अपनी बेटी दी इज्जत पत दा हर वेले फिक्रमंद है, याद रखियो दूजियां दी बहु बेटियां दी इज्जत पत दा भी फिक्रमंद हो जाएगा। फिर उन्होंने समझ आ जाएगी, देख पराइयां चंगियां मावा भैणा धियां जाने। फिर उन्होंने समझ आ जाएगी, परतरी रूप ना पेखा नेत्र, मेरे तो लैके तुहाडे तक सारियां ने अपने अपने अंदर झात मारनी है, क्योंकि आपां नूं सारियां नूं अपना पता हुंदा है कि असी अवगुण कढ सकते हैं। जे अवगुण निकल जाता है तो फिर सानू समझ आ जाएगी असी चंगे तरीके नाल गुरु उत्ते मान कर रहे हैं। 14 तो वध जंगां लड़ियां गुरु गोबिंद सिंह साहब सतगुरु जी ने जुल्म ते जालम नू रोकण लई। पर कितने मान की गल है कि 14 तो वध जंगां लड़दियां भी किथे भी एक घटना भी किसी दूजे इतिहासकार ने भी यह नहीं लिखी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के सिंघां ने किसी की बहु बेटी की पत उत्ते हथ पाया, भावें दुश्मन दी क्यों ना होवे। पर ऐसे ऐसे बादशाह देखे गए इस देश च, ते अज भी ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हां दी इलाकियां दे च दहशत है, ते उन्हां दे गुंडे उदों भी जाते सन, लोकां दी बहु बेटियां घरां तो खिच के ले आउंदे सन, अज भी हुंदा है। बहुत सारी गरीब बच्चियां परिवार डर जाते ने, दस ही नहीं पाउंदे। कारण की? विवेक विवेक बुद्ध नहीं है। ते जे विवेक बुद्ध नहीं है तो हरी नजर नहीं होंदा। हर कौन जो हर वेले मौजूद है, हर कौन जो हर जगह है, हर कौन जो हर वेले सहाई हुंदा है, हर कौन जो हर एक विच मौजूद है, हर हरी कौन जो हमेशा हरिया भरिया है। बंदिया जे ओदे नाल जुड़ जाता है हमेशा ही हरिया भरिया रहेगा। सतगुरु जी अज समझा रहे ने कि भावें इंद्र दे समान
तेरे कोल घर होवे आसन होवे, बिन हर भगत कहो किह लेखे। हरि दी भगती तो बना किस लेखे है जीवन। ना विचार्यो राजा राम को रस, जिह रस अन रस बीसर जाही। इत्थे बिसर जाही नहीं शब्द वरत्या, बीसर जाही। कहंदे तू नाम रस नूं जाणिया ही नहीं, केवल होर रसां कसां च फसिया रहा। रस सोना रस रूपा कामन, रस परमल की वास, रस घोड़े रस सेजा मंदर। यही रस केवल लभे ने। ये रसना तू अनरस रास रही, तेरी प्यास न जाए। ये रसां कसां ने साडे जीवन नूं बिल्कुल ही गलतान कर दिता है, नाश हो गया जीवन। पर जे किते नाम रस मिल जांदा ना, हरी रस मिल जांदा, ते जीवन हरिया भरिया हो जाना सी। ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत किता। जिचर हर रस पल्लै ना पाए हर रस, हर रस पाए पल्लै पिया हर रस। बहुड़ ना तृष्णा लागै आए, ए हर रस करमी पाइया। सतगुर मिलै जिस आए। सतगुरु नूं किस तरह मिले हैं। होर लोकां नूं मिलन जांदा है ते की जावेंगा कि सामने शक्ल विखा के या अपनियां मंगां दो चार गल्लां सुना के तुर पेंगा। नहीं, अपने काम लई गया, बहुत कुछ मंगण गया, उत्थे बैठना पैना है ते अगला बिठाउंदा भी है, जान के बिठाई रखदा, आया मंगण बैठण दिओ इहनूं। पर गुरु दरबार ते आउंदा मिलन गुरु नूं, बड़ा कुछ मंगदा भी है, इत्थे शर्माउंदा भी नहीं है। उत्थे तां एक मंग मंगेगा, दूजी मंगण लग्या शर्मावेगा। जे आप नहीं शर्मावेगा अगला शर्मिंदा कर देगा। तेरे लिए सब कुछ पिया है, तैनूं ही दे दियां। गुरु ने तो कदी नहीं सानू कहा भी तैनूं ही सब कुछ दे दियां। पर इत्थे मिलन आउंदे आ, सामने खड़े हो के ते गुरु नूं 8-10 मंगां सुनाइयां। कोई बुराई नहीं, मड़िया मसाणा तो थोड़ा मंगांगे, गुरु तो ही मंगांगे। बारिक मांगी हो सब किस मंगां देंदे तोट नहीं प्रभ रंगा। पर मंग के दूजे पासे तो तुर जावांगे। दास ने बेनती की सी, सके बाप कोल पिता कोल मां कोल भी चले जाओ ना, ते गिफ्ट तोहफे लैके जाओ, दौलत लैके जाओ, ते खड़े खड़े सामने रख के दो चार अपनियां गल्लां सुना के तुर पाओ ना, ते सके मां बाप भी कह देंदे ना तेरी दौलत दे भुखे नहीं सी बैठे। इस तो चंगा ना ही आउंदा, अपनियां सुना के चला गया। ते जिथे गुरु पिता गुरु ग्रंथ साहब जी कोल आइए, वाहिगुरु कोल आइए, उथे एडी वड्डी अवग्या, अपनियां सुना के दूजे पासे तो निकल जाइए। माता पिता भी गुरु ने सानू 3 प्रकार दे समझाए ने। विचार तो बहुत अगे तक जा सकती है, तुच्छ बुद्धि अनुसार जो कुछ नजर आउंदा है। एक तो माता पिता जो सानू सामने नजर आउंदे ने, जन्म होया साडा माता पिता। गुरु ने कहा इस तो अगे होर माता पिता ने, कहंदे माता मत पिता संतोख, काश मत तेरी मां बन जावे ते संतोख रूपी पिता तेरे अंदर टिक जावे। ते एक माता पिता होर, निंदा बाप, बाप दा अर्थ पिता, निंदा बाप निंदा महतारी। जद इन्हां तिन्नां माता पितावां नूं समझ लेंगे ना भी दुनियावी माता पिता आप कुछ नहीं दे रहे सानू, जे दे रहे ने ते पिछे कोई होर माता पिता खड़ा है। तुम जो कहिए तो नंद को नंदन नंद सो नंदन काको रे। जे तुसी कहंदे हो श्री कृष्ण जी नंद दे पुत्र ने, फिर नंद किस दा पुत्र है? कहंदे अपने पिता दा। फिर ये दसो ओदा पिता किस दा पुत्र है? माया ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया?
कौन कित्थों आया सी उदों? पहली मां पहला बाप किसने बनाया? कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाको माई ना बापो रे। उत्थे गल पहुंच जावे दुनियावी माता पिता नूं वेख के कि उत्थे तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भराता, वो वड्डा पिता वाहिगुरु काम कर रहा है। जे ये समझ आ गई ना, फिर चंगी लगेगी निंदा। निंदा बाप, निंदा महतारी। हाले तो निंदा सानू साड़ जाती है, निंदा तो सुन के तड़प उठते हैं। याद रखियो, जितनी वडियाई सुनन की प्रबल इच्छा होगी अंदर, उतना ही निंदा ज्यादा चुभेगी, दुख देगी। जितना बड़ा पहाड़ होंदा ना, उतनी ही डूंगी खाई होंदी है नेड़े। जे अंदरों साडे ये इच्छा मुक जावे वडियाई सुनन दी, फिर याद रखियो निंदा बुरी नहीं लगेगी। फिर ते कहांगे निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। कदी कदी सोचदा बंदा अपने आप को कामयाब करने लई जितना चक्कर दूजे उत्ते सटदा है ना, उतनी मेहनत चक्कर सट्टन की बजाय अपना चक्कर साफ करन ते ला दवे ना, ते जीवन बड़ा पवित्र हो जाएगा। जितना असी दूजियां नूं निंददे आ, ये काम नहीं कीता, वो काम नहीं कीता, ये नहीं होया, वो नहीं होया, उतना ताण अपने चंगे काम करन ते ओ काम प्रगट हो जान, लोकां नूं पता लग जान, उस पासे ताण लग जावे ते जीवन सफल हो जाएगा। कुछ कमा जावांगे, पर दौड़ होर पासे लग गई है। सतगुरु जी अज समझा रहे ने, कहंदे ये दुनियावी रस सारे फिक्के पै जाणगे, रहाओ जान अजान भये हम बावर। पंक्ति बड़ी कमाल दी है। कहंदे असी जानदे भी हां ते जान के अनजान बने हुए हां। सानू सब पता हुंदा है की हो रहा है की नहीं हो रहा। कई बारी तो मूंह मुलाजे दे करके दूजियां दे माड़े काम दे च असीं शामिल हो जाते हैं। कई बारी सबजैक्ट चल रहा होंदा ना, तो गल फिर उत्थे आ जाती है। हुण जे किते कोई एक या दो बंदे माड़ा कर्म कमा रहे सन ते 6 की गिनती होवे ते हद हो गई कि उन्हां विचों 4 भी नहीं जाग सके। जे 4 जाग जाते तो 2 नूं रोक लेंदे, पर जे किते 4 नहीं जागे 2 जाग जाते, 2 नहीं जागे 1 ही जाग जाता। ऐसी गल नहीं कि कोई जागना नहीं चाह रहा होगा, एक अद्धा ऐसा भी होया होगा शायद ना चाहता होवे, पर मूंह मुलाजा जो होया मूर्ख होई तां है। असी अपने आप नूं समझना सारिਆਂ ने, मेरे तो लैके तुहाडे तक। असी बहुत सारे गलत कामां विच कईयां दा बुरा हो रहा हुंदा है, पर असी दूजे नूं रोकदे नहीं आ। की पता थोड़ा जिहा कह दिंदे ते दूजे दा बुरा होण तो बच जांदा। 2 नूं बचाउंदे, 1 नूं सजा तो बचा लैंदे ते दूजे दे जीवन नूं बचा लैंदे। पर मूंह मुलाजा जो भी इहदे सामने की बोलांगा नाराज ना हो जावे। भाई कान सिंह नाभा होना ने मूर्ख शब्द के अर्थ यही तो कीते ने। मूर्ख दा अर्थ मूंह रख, मूंह रख के गल करे, सच बोले ही ना। सतगुरु जी कहते जान अजान भये हम बावर। बावर दा अर्थ हुंदा बावरा, पागल। असी बौराने हो गए हैं। क्यों बौराने हो गए हैं? शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग बौराना। जगत बौराना होया पिया। दास ने बेनती की सी, बौराना शब्द की, पागल कौन? पागल साडे वांग कपड़े पाउंदा है, कपड़े वो भी पा रहा, पर उन्होंने पछाण नहीं पाने किस तरह ने। मैले भी पा सकता, पुट्ठे भी पा सकता है। खाना वो भी खा रहा है, पर उन्होंने पता नहीं खाना किस तरह है, सब कुछ लपेट लैंदा है। तुर वो भी रहा, पर किधर तुरना, जिधर तुरदा तुरदा ही चला जाता है। उन्होंने जीवन की पछाण नहीं, वो बावरा, उन्होंने किसी गल की पछाण नहीं, बावरा। सानू भी जीवन की पछाण नहीं, असी भी बावरे। असल सियाणा तो वो है ना जिन्हों जीवन की पछाण हो गई।
ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪਪਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸਾਈਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸੇ ਚ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆਂਗਾ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ, ਸਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਲ, ਸਹਿਤ। ਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਨਿਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਬਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਮਨ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ। ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਰਥ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਅਕਾਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨਕਛ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਚਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੈਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੈਵਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਵੇ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਸਕਾ ਬਾਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਐਸੇ ਕਈ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ।